Hello everyone, I welcome you all in my Axis class. Dear students, I am Anand Kumar Upadhyay and today I will discuss about synthesis. Okay students, it is very important and significant topic from the point of view of board exam for class 11th and 12th. Dear students, firstly it is written here what? Synthesis. Firstly we will see the definition of synthesis. Synthesis means what? Synthesis means combination. Okay, combination. Synthesis means what? Combination. Here means जुड़ाव जिसको बोलते हैं जोड़ना. अब यहाँ पर जुड़ाव क्या होगा? दो सेंटेंसेस का होगा या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस का होगा. ठीक है. और उसमें क्या करेंगे कि हम लोग दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, फिर या एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे और फिर या एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे. गेट इट? सो here the definition is synthesis means combining two or more simple sentences into a single simple compound or complex sentence. Okay, this is the definition, dear students. What is synthesis? Synthesis means combining two or more simple sentences into a single simple sentence or compound sentence or complex sentence. Okay students, means they are of three types. Okay, they are of three types. The first is what? Combination of simple sentences into a simple sentence. Okay, the second one is combination of simple sentences into a compound SENTEN into a compound sentence, you will understand. Okay, and the third one is what? Combination of simple sentences into a complex sentence. Okay, so one by one we will see. Firstly I will discuss about the combination. First, combination of simple sentences into a simple sentence. Okay dear students, so we will see what firstly to this part, and next we will see combination of simple sentences into a compound, this part, and later on we will see the third one, which is complex sentence. Okay, the combination of simple sentences into a complex sentence. Okay dear students. Okay, when we will frame means joining two simple sentences or more than two simple sentences into a simple sentence. For these there are totally 8 ways. Okay, 8 ways. Total are how many ways? 8 ways. Okay, the first one is
by using participle, and second one is by using infinitive. Okay, infinitive. And third one is what? By using means nominative, TIVE, nominative absolute. Okay, and fourth one is by using preposition, before noun or gerund. Okay, and fifth one is by using means adjective. Okay, sixth one is what? By using conjunction. And seventh is what? By using adverb or adverbial phrase. Okay, adverbial phrase. Okay, and the eighth one is, okay, means by using noun or phrase, in opposition. Okay, totally eight ways are there. Okay, by using 8 ways means 8 are what? Like instrument. This is what? This is like our toolkit. Okay, means by using two means if we have to combine two simple sentences or more than two simple sentences into a simple sentence, then we can use means we will have to use these 8, okay, structures. Getting a point or not? These 8 structures, and by using it means any one out of 8 we can frame our one simple sentence. Got it, dear students? So firstly we will learn how to change by using participle. Okay, got it, dear students? Now I am just erasing it. Okay, and I will discuss what? The first one is what? By using participle. Okay, dear students, firstly we will have to understand what is participle. Okay, participle they are of what? 3 types. Getting a point or not? First one is what? Present participle. Second one is what? Past participle. And third one is what? Perfect participle. Getting a point or not? And participle is a means in general it is what? It is an adjective. It works as an adjective in the sentence. Getting a point or not? See here, means I'm talking about means see here. Okay, first one is what? Suppose when we will use what? This is participle, and participle are of what? 3 types. This, how many types are of they? There is what? Present participle. Second one is what? Past participle. And third one is what? Perfect participle. Got it? So by using what? By using present participle. Okay, we will see by using present participle. By using present participle.
okay, by using present participle. Here students, what we will have to see, we will have to focus three things, okay. Three things means, suppose here is what, he saw a lion, getting a point, he ran away, okay. So in this subject of two sentences or more than two sentences, okay, see here, here is also subject he, and in second sentence also there is subject he, means subject of the sentences, okay, subject of the sentences, 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 okay, should be same, getting a point or not, means if two sentences are there, then subject of two sentences should be same, okay. Here two sentences there, means subject 1 and subject 2 should be what, same. And finite verb, getting a point or not, finite verb, okay, means finite verb is what, which changes, means according to tense and subject, okay, that is what, finite verb, okay. And infinite verb is what, which does not change according to subject, means subject means singular and plural, and according to sentence, that is what, infinite, means yes, finite and non-finite means infinite, okay. Sorry, finite and non-finite is there, okay. This is what, finite verb, got it. So we will do what, here subject of the sentences should be same, and second thing what, finite verb, finite, finite verb, okay, should be what, should be differ, differ, okay. दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए और दोनों सेंटेंस के जो वर्ब हैं, ठीक है, वो दोनों वर्ब क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। और इसमें तीसरा बात ये है कि इसमें टाइम इंटरवल देखना होगा, टाइम इंटरवल, INTERVL, टाइम इंटरवल इक्वल टू नथिंग होना चाहिए या फिर बहुत ही लेस होना चाहिए। टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, समझ गए ना। टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, मतलब एकदम ही कम होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में अगर ये तीनों लक्षण मिल रहे हों, ठीक है, तो हम इन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके इन दोनों सिंपल सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि हम देखेंगे जो दो सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें सबसे पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले कौन सा वर्क हो रहा है कि ही सॉ अ लायन, पहले वो शेर को देखा है कि पहले वो भाग गया है। आप लोग बोलेंगे सर पहले तो शेर को देखा है, तो जो काम पहले होता है, ठीक है, उसी सेंटेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, ठीक है ना, मतलब उसी सेंटेंस का पार्टिसिपल करेंगे, ठीक है। तो इसमें मतलब एक जो सेंटेंस सब्जेक्ट है, ठीक है, इस सब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे और जो वर्ब है उसी वर्ब को हम लोग फाइनाइट, मतलब उसी को हम लोग पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर हम लोग इसको बना लेंगे कि सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन कॉमा करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या, ही रैन अवे, सीइंग अ लायन ही रैन अवे, गेटिंग ए पॉइंट और नॉट। Here there is no need of there was no need of this subject, so I didn't use it। and इसमें देखो पहले ये काम हुआ है, बाद में ये हुआ, पहले शेर को देखा गया, बाद में ना वो भागा, तो जो पहले काम होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या, वर्ब में ING लगा देंगे, ठीक है, जो वर्ब रहेगा फाइनाइट और उसमें ING लगा देंगे और उसके बाद जो है उसको लिखेंगे और फिर दूसरे सेंटेंस को एज इट इज इसके अगेंस्ट में उतार लेंगे। और चूंकि यहाँ पर ये दूसरा सेंटेंस था तो दूसरे सेंटेंस को एक सेंटेंस में किया, इसलिए यहाँ पर कॉमा करके दूसरे सब्जेक्ट को, मतलब सेंटेंस को उतार लिए, ठीक है। तो
ये पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेज शुड बी सेम, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, और हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में तब यूज करेंगे, ठीक है, जब वहां पर टाइम लिमिट क्या हो, एकदम कम हो। ओके, चलिए जैसे यहां पर लिखेंगे he took out his sword, SWORD, ठीक है, he he killed his enemy, ENEMY, ठीक है। तो इसमें देखिएगा इस बार भी दोनों सेंटेंस के क्या है, सब्जेक्ट सेम है, और यहाँ पर देखिएगा कि दोनों के वर्ब क्या है, मतलब अलग अलग है। यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट S1 और S2 क्या है, सेम है, ठीक, और वर्ब क्या है, पहले सेंटेंस का वर्ब और दूसरे सेंटेंस का वर्ब क्या है, डिफर है, ठीक है। और इसमें देखिएगा ही टूक आउट हिज स्वॉर्ड, मतलब वो तलवार निकाला और उसने तलवार से क्या कर दिया, अपने एनिमी को मार दिया। अब यहाँ तो ऐसा है नहीं कि तलवार आज निकालेगा और मारेगा कल, ठीक है, तो मतलब टाइम लिमिट, जैसे कोई दो दुश्मन है, टाइम जो तलवार निकाला पहले उसने उसको अटैक कर दिया, ठीक है, टाइम लिमिट बहुत ही कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, मतलब अवॉइड कर देते हैं, हटा देते हैं, और इसका पार्टिसिपल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेकिंग आउट हिज स्वॉर्ड, मतलब स्वॉर्ड बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर कॉमा करेंगे क्योंकि सेंटेंस अब एक में लेना है ना, तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, ही किल्ड हिज एनिमी, ENEMY, गॉट इट। अब मतलब ऐसे ही, ठीक है, ये तो हम लोगों का दूसरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा एग्जांपल लेंगे कि ही मीन से और भी बोल सकते हैं, ही टूक आउट हिज पेन, ही रोट अ लेटर, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि पेन आज निकालेगा और लेटर कल लिखेगा, यहाँ पर टाइम लिमिट क्या है, एकदम कम है। इसमें देखिएगा सबसे पहले कौन सा काम हुआ है, पहले लेटर लिखा गया है कि पहले पेन निकाला गया। आप लोग बोलेंगे सर पहले पेन निकाला गया है, ठीक है, तो जो काम पहले होगा उसी का पार्टिसिपल होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को हटा देंगे और यहाँ पर वही सेम चीज, ठीक है, टेकिंग आउट हिज पेन, ओके, कॉमा करेंगे, ही रोट अ लेटर, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के 3 फीचर्स होते हैं, समझ गए। पहला क्या कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेज हों, लेकिन उसके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और 2 या 2 से अधिक वर्ब हों। अगर सेंटेंस 3 है तो तीनों के वर्ब क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। और उसमें जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, टाइम इंटरवल ये एकदम इक्वल टू क्या होना चाहिए, मतलब नथिंग होना चाहिए, टाइम इंटरवल नहीं के बराबर होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू नथिंग हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू नथिंग होना चाहिए। ये 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, जिसके माध्यम से, जिसके यूज से हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके, ठीक है, हम लोग सेंटेंसेस को 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर पाते हैं, गॉट इट। अब देखिएगा ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होता है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल को, ठीक है, हम लोग कुल इसमें 3 तरीके होते हैं, 3 वेज होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, सब 3। ये है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो जो सेकंड वे है, ठीक है, सेकंड वे क्या होता है कि जैसे कि जो हमारा इज, एम, आर और वाज वर होता है, ठीक है,
वो क्या करता है कि एक मेन वर्ब का काम करता है। मेन वर्ब का मतलब जैसे कि यहाँ पर हम एक लिख दें कि ही इज इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, ओके, एंड ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बोलेंगे, ठीक है, QUESTIONS, समझ आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो इज है ना, वो इज एक मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, समझ गए। अब देखो कभी कभी जैसे कि मैंने ये बोला कि ही इज गोइंग टू स्कूल, समझे, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर जो ये इज है ना, वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, समझ गए। यहाँ पर जो ये इज है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, समझ गए। और ये जो गोइंग है वो अपना मेन वर्ब का काम कर रहा है। गेटिंग ए पॉइंट और नॉट। ये इज जो हेल्पिंग वर्ब है और ये गोइंग जो है वो मेन वर्ब है ना। तो ये है कि मतलब जैसे देखो इज का जनरली प्रयोग कहाँ होता है। इज का मतलब है कि वर्ब इज MR के बाद क्या होता है, वर्ब का ING आता है। वाज वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब का ING आता है, समझे कि नहीं समझे। और तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये इज है ये एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि जब इज MR ना हमारा एक मेन वर्ब का काम करे, ठीक है। अब देखो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम लोगों को करना है चेंज ना, तो हम लोग देखेंगे कि क्या दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो दोनों के जो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब यहाँ पर जो वर्ब है अलग अलग है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि वर्ब अलग अलग होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि दूसरे तरीके हैं, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है, और वर्ब अलग अलग होने चाहिए, ठीक। और टाइम इंटरवल की बात है, इसलिए देखो कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और इन सारे क्वेश्चन को कर सकता है। ये दूसरा भी है, अगर इस स्ट्रक्चर का आएगा, सेंटेंस आपका इस स्ट्रक्चर का रहेगा, तो आपको क्या करना है, इस बार मतलब बीइंग यूज नहीं करना है ना। इस बार आपको मतलब वर्ब में जैसे कि ईटिंग और हम लोग यूज कर रहे थे ना, मतलब सीइंग जैसा भी था, है ना। तो इस बार हम लोगों को यहाँ पर बीइंग यूज करना है, ठीक है। इस सब्जेक्ट को हटा देना है, इस ही को हटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बीइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बीइंग इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। अब देखो इंटेलिजेंट होने के नाते यहाँ पर कॉमा करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, ही कैन सॉल्व, ठीक है, ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, QUESTIONS, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे दूसरा सेंटेंस हम ये देख लें कि इस तरीके से लिख लें कि ही इज TIRED टायर्ड ऑफ प्लेइंग, ठीक है, ही इज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, ही वेंट टू टेक रेस्ट, ठीक है, ही इज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, ही वेंट टू टेक रेस्ट। और तीसरा भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ही वॉज हंग्री, HUNGRY, ठीक है, ही टूक हिज मील और फूड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिखेगा कि ही इज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इज है ना, वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, समझ गए, वो एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे क्या, बीइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बीइंग, TIRED टायर्ड ऑफ प्लेइंग ना, बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग। यहाँ पर कॉमा करेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, एक सेंटेंस बना रहे हैं, तो ही वेंट टू टेक रेस्ट, REST ना। अब यहाँ पर देखिएगा ही वॉज हंग्री, वो बहुत भूखा था, ही टुक हिज फूड, तो भूखे होने के कारण या भूखे होने के नाते, ठीक है, बीइंग हंग्री, HUNGRY, ठीक है, बीइंग हंग्री, ही यहाँ पर कॉमा करके बीइंग हंग्री, ठीक है, बीइंग हंग्री, ही टुक हिज फूड, समझे ना। मतलब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे
प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम लोग अपने सिंपल सेंटेंस को, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल के 3 तरीके हैं ना सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ठीक। और 2 तरीकों का हमने मतलब चर्चा कर लिया। अब मैं फाइनली तीसरा चर्चा करने जा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा मतलब जो मेथड है आप लोग इसको देख लीजिए, मैं, ठीक है ना। तीसरा मतलब बताने जा रहा हूँ, ठीक। अब जो थर्ड वे है ना, यहाँ पर देखिएगा, तो आज हम मतलब देखिए वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, ठीक है। तो आज जैसे प्रेजेंट का तो पूरा आप लोग जान गए कि प्रेजेंट का कैसे होगा, फिर पास्ट और परफेक्ट का एक ही वीडियो में बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि यूजिंग पार्टिसिपल आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब थर्ड क्या है कि जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होगा ना कि एक सेंटेंस आपका पैसिव में रहेगा, ठीक है। एक सेंटेंस जो रहेगा वो किस में रहेगा, जैसे पैसिव में रहेगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे ही वॉज SURROUNDED, ही वॉज सराउंडेड बाई पुलिस, ठीक है। ही killed to himself, he killed to himself, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए जो पहला सेंटेंस है, ठीक है, वो आपका पैसिव में है, और दूसरा सेंटेंस क्या है आपका मतलब एक सिंपल सेंटेंस में है ना, he killed to himself। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग देखो सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट क्या है सेम है, लेकिन पहला सेंटेंस क्या है पैसिव में है। जब ऐसा रहेगा कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो और पहला सेंटेंस क्या रहेगा आपका पैसिव में रहेगा, तो आप लोग क्या करोगे कि इसको हैविंग बीन से मतलब कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, HAVING, हैविंग बीन सराउंडेड SURROUNDED बाई दी पुलिस कर देना, बाई द पुलिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, ही KILLED, ही killed to himself, ठीक। अब ये तो एक सेंटेंस हो गया ना। दूसरा हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मतलब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि she was PUNISHED, she was punished, okay, she was punished by her प्रिंसिपल लिख देंगे PRINCIPAL, ठीक है। मतलब she was punished by her principal, she felt sorry ना, यहाँ पर लिख देंगे she felt sorry SORRY, ठीक है। मतलब उसको प्रिंसिपल के द्वारा दंडित किया गया और उसे बहुत दुख हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या कि हैविंग बीन, ठीक है, पनिश्ड PUNISHED, हैविंग बीन पनिश्ड बाई हर प्रिंसिपल PRINCIPAL, प्रिंसिपल, कॉमा करेंगे शी फेल्ट सॉरी, ठीक है, शी फेल्ट सॉरी SORRY, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ तक हुआ 3 वेज थे, ठीक है, यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। यूजिंग पार्टिसिपल तो है ही, पार्टिसिपल में 3 तरीके हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और परफेक्ट है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में 3 तरीके हैं, फिर से आप रिकॉल कर लीजिएगा कि पहले सेंटेंस के क्या होंगे, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होंगे और दोनों वर्ब क्या होंगे फाइनाइट वर्ब होंगे और दोनों वर्ब अलग अलग होंगे ना, और टाइम लिमिट बहुत कम रहेगा। दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कि दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा कि पहला सेंटेंस जो होगा वो एकदम किस फॉर्म में होगा, मतलब वो मतलब क्या होगा कि इसमें इज एम आर वाज वर जो होंगे वो एक मेन वर्ब की तरह होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर बीइंग यूज करेंगे। और तीसरा क्या है कि तीसरा में मतलब जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस क्या होगा आपका पैसिव वॉइस में होगा और दूसरा सेंटेंस मतलब जैसे सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है, उस सेंटेंस में होगा, समझ गए। तो जब उसमें क्या रहेगा पैसिव वॉइस में रहेगा
तो वहाँ पर क्या करेंगे, हैविंग बीन का यूज करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आपको ये समझ में आया हो, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे भी इसी तरीके के वीडियोज़ हम देते रहेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।